Hello students, welcome back once again. In previous videos, you have studied about lines and angles, and also we have done the angle sum property of a triangle. Right? In the lower classes, आपने triangles के बारे में कुछ चीजों के बारे में जाना, जैसे कि triangles के तीनों angles का सम कितना होता है 180. फिर exterior angle theorem के बारे में जाना. From now onwards, we are taking two or more triangles at the same time. Two or more triangles same time. दो triangles या दो से ज्यादा triangles के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. So बच्चों, we are talking about a new topic now. New topic कैसा? Two triangles के बारे में कि अगर दो triangles हैं तो उनके जो दो triangles हैं वो कैसी हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं दो triangles. तो before I start my topic, let's start with an example. आपने आपका एक फोटोग्राफ खींचा, आपने अपने एक फोटोग्राफ को प्रिंट किया, ठीक है, आपने उसकी 4 कॉपी निकाली, तो क्या देखा आपने कि all 4 कॉपीज आर सेम, है ना. या आप देखिए 1 रुपी कॉइन है, मान लो 1 रुपी कॉइन, उसकी आप बस 10 है, 10 कॉइन्स यू आर हैविंग. एक कॉइन के ऊपर आपने दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, है ना. तो इट मींस every coin, each and every coin overlapping the other coin. So मैं क्या आपको बता रहा हूं यहाँ पर, I am talking about same things, same things. So यहाँ पर जो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं same things के बारे में, that is congruence. The congruence, congruence means equal. Two things, two geometrical shapes are equal and of same size in all respect. When I say all respect, I am talking about their angles, I'm talking about their sides. तो sides और angles क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए. किनके? दो shapes के. Right? So let us start a new tutorial series on the topic triangles, in which we are going to discuss congruency of triangles. Congruency. So congruency, and in next 10th class जो आप 10th में पढ़ेंगे तो वहां पर एक similarity criteria you will discuss. So in 9th class there is congruency criteria. There are some criteria of congruency. Let's discuss one by one of them. First criteria is SAS, side angle side criteria. So what is the statement? The statement is two triangles are said to be congruent if two sides and an included angle of a triangle is equal to two sides and the included angle of other triangle. Right? So let's make a figure of two triangles. Here this is triangle, let's say ABC, and there is another triangle DEF, and I'm saying that AB equals DE, BC equal to EF. Right? These two sides are equal. This equal to this and this side equals to this. And the included angle, तो included angle का मतलब है कि इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल है ABC, और यहां पर जो एंगल है E, these two are equal. Then the triangle ABC is congruent. This is a symbol of congruency. Congruency का symbol है ये, is congruent to triangle DEF, and this is an example, basically side angle side congruency criteria, and you need to use this criteria to prove some theorems. आगे फिर आपकी थ्योरम आने वाली है, इस एग्जाम को आप उसमें यूज करेंगे और ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए भी आप इसको यूज करेंगे. तो दिस इज एन एग्जाम्पल, और इसका प्रूफ नहीं करना. When two sides and an angle must be included, then two triangles are congruent. But अब आप कहेंगे कि सर अगर एक एंगल और कोई भी दो साइड, जैसे कि एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल, any two sides and an angle, if they are equal, then two triangles are not congruent. So these two criteria does not hold. Now next is angle side angle. जैसे कि हमने भी एक एग्जाम्पल पढ़ा
side angle side. Next we are having angle side angle congruency rule. What it says, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? आपको स्टेटमेंट भी याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव ASA congruency rule, राइट? तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए. व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इज if two angles and included side of a triangle is equal to two angles and included sides of other triangle, then two triangles are congruent. So this is a theorem and the most important theorem in this chapter also. तो थ्योरम प्रूव करने का मेथड आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा, प्रीवियस चैप्टर में देखा आपने कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझ के उसमें से लिखना होता है कि व्हाट इज गिवन टू यू. सो फर्स्ट यू विल राइट गिवन, राइट? तो व्हाट इज गिवन टू यू? टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल you can say ABC and triangle DEF. These two triangles are given. If these two triangles are given, you need to make the figure. So this is triangle ABC and this is triangle DEF. Right? And what is given to you? स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि टू एंगल्स. सो मान लेते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड इंक्लूडेड साइड, तो दोनों एंगल पर हो BE इक्वल टू EF. तो दिस इज गिवन. तो लिख लेते हैं इस चीज को. तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC एंड DEF in which angle B equal to E, C equals to F, BC equals to EF. This is to prove. क्या प्रूव करना है आपको? ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF. Right? Now, how you prove this? अब अपने एक एग्जाम पढ़ा है SAS, वो आपके पास अवेलेबल है एज अ फॉर्मूला, उसका आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ यू टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स, तो बच्चों तीन केस यहां पर अराइज होंगे. केस वन. सो केस वन, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, तो केस वन मान लेते हैं कि AB और DE, लेट्स से दे आर इक्वल. लेट AB इक्वल टू DE हमने मान लिया, ठीक है, अज्यूम कर लिया आपने. सो AB इक्वल्स टू DE, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, इट इज गिवन. BC इक्वल्स टू EF, इट इज आल्सो गिवन. तो क्या हो गया? आपने इसको इसके इक्वल मान लिया, अज्यूम कर लिया, ये इसके इक्वल दिया है, these two are equal. So it is an axiom. Side angle side, side side और बीच में एंगल, side side and included angle. So यहाँ से तो बड़े आसानी से हो गया. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. क्या यूज किया आपने? Side angle side congruency rule by SAS. Right? बट क्या जरूरी है कि ये दोनों इक्वल होंगे? ये तुमने अज्यूम किया है ना, मतलब देयर में भी सिचुएशन ऐसा तो हो सकता है कि इक्वल ना हो, AB नॉट इक्वल टू DE. सो क्या होगा? AB नॉट इक्वल टू DE. तो देयर में अराइज टू सिचुएशन कि जो ये AB है वो DE से बड़ा है. देयर में भी सिचुएशन ले लेते हैं. लेट AB मोर देन DE, कि जो AB है वो DE से बड़ा है. दोबारा फिगर बना लेते हैं, आसान लगेगा. तो आपने बना लिया ABC, आपने क्या अज्यूम किया? AB इज मोर देन DE. ठीक है. सो AB इज मोर देन DE. सो इफ AB इज मोर देन DE, व्हाट विल यू डू? आप यहां पर एक पॉइंट लो P. लेट P इज
a point on AB such that कि PB जो है वो किसके इक्वल हो गया, DE के, मतलब इस, ये तो कर सकते हैं ना, वो उसके इक्वल नहीं है तो ठीक है, हम उसके इक्वल एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पे PB एक पॉइंट ले लिया जो DE के इक्वल है यहाँ पर, और अब क्या करते हैं कि नया ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। क्या ट्रायंगल बना लिया, PBC। तो मैंने क्या कहा कि ये इसके इक्वल लिया ना, इसी तरह से लिया आपको, बी ई के इक्वल ऑलरेडी दिया है, BC एंड EF ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, ओके। सो इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF क्या करेंगे, PB इक्वल्स DE। आपने क्या लिया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया ना, PB इक्वल्स टू DE, एंगल B इक्वल टू एंगल E, इट इज गिवन, BC इक्वल टू EF, इट इज ऑल्सो गिवन, राइट, ठीक है। तो अब फिर से वही बात बच्चों, ऐसे जो एग्जाम हम प्रूव करें, हमने आज यूज किया है, तो उसी एग्जाम को फिर से यूज करते हैं और बताते हैं कि ट्रायंगल PBC is congruent to triangle DEF, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब तो यहां पर जो एंगल बना ये वाला PCB, देन एंगल PCB must be equal DFE, or you can say F, PCB equals to angle F, F के इक्वल हो गए। बट इनिशियल अजम्पशन क्या थी अपनी, कि C equals to F, अजम्पशन क्या थी, हमने इसको क्या लिखा, let T is a point on this such that, ऐसे माना हमने इसको, let it possible, ये यूज किया आपने कि let PB is DE, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग वाला जो मेन क्वेश्चन गिवन था, दैट इज एंगल C इक्वल्स टू F, मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल वो F के इक्वल था। तो यह क्या कह रहा है कि यहां से देखा जाए तो एंगल PCB इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल C, मतलब जो ये एंगल है ये इस पूरे के इक्वल है। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बट हो सकता है कब, कि अगर ये लाइन ही ना हो, when PC is not there, जब PC ही ना हो, मतलब PC coincides with PAC, जो PC AC को coincide कर जाए, मतलब PC लाइन ही ना हो, मतलब कि क्या हो फिर, कि AB और DE इक्वल हो, तो लिखेंगे this is not possible, or you can say it is possible, it is possible only when AB equals to DE. So hence two triangles are congruent. Similarly आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, you can write it can be proved that triangle ABC and triangle DEF are congruent by taking AB less than DE, मतलब जो आपने AB more than DE लिया यहां पर, आपने AB more than DE लिया यहां पर, तो you can write AB less than DE, मतलब इस केस में आप AB को छोटा ले लेंगे और DE को बड़ा ले लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ की बजाय कंस्ट्रक्शन यहाँ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर आप दोनों ट्रायंगल को दिखा दोगे, फिर आप बताओगे कि जो ये एंगल बना यहाँ पर P, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोई पॉइंट आपने लिया यहाँ पर QFE, जो एंगल लिया ये इक्वल टू C हो जाएगा, बट C तो कंप्लीट F के इक्वल था, तो इट मींस ये लाइन नहीं होगी, इट मींस दोनों इक्वल होंगे, एंड हेंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। So in your exercise 7.1 we will use these two theorems or these two criterias. One was side angle side, and second this theorem angle side angle, to prove some questions in your exercise, right? So keep watching.